नमस्कार, मैं आत्मज्योति आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। शुरू करते हैं सुर्खियों से। और रात में कर्नाटक रक्षणा वेदिके द्वारा डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवरू का 132वां जन्मदिवस मनाया गया। बीजापुर के मौलाना आजाद स्कूल में 15 से 18 साल के बच्चों को टीका दिया गया। कर्नाटक में 5 जनवरी से सप्ताहांत कर्फ्यू लागू होगा। कर्नाटक में कम सकारात्मकता दर वाले स्थानों में कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार किया जा सकता है। दुनिया में हुई किरकिरी। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार। भारत में अभी बड़े शहरों तक ही सीमित है कोरोना की तीसरी लहर, लेकिन छोटे जिलों में भी बढ़ रहे हैं मामले। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर शहर में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ऋतिकांत स्वामी के मार्गदर्शन में तंबाकू नियंत्रण करने के लिए शहर में विभिन्न दुकानों में पुलिस बल के सहयोग से छापेमारी की गई। इसमें कुल 68 दुकानों में छापे मारकर जुर्माना लगाया गया है। औराद तालुका में गुरुवार को कर्नाटक रक्षणा वेदिके की ओर से डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवरू का 132वां जन्म दिवस मनाया गया। कार्यक्रम से पहले एक भव्य रैली अम्बेश्वर मंदिर से निकाली गई, जो शहर के डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमारपल्ली कल्याण मंडप पहुंचकर समाप्त हुई, जहां मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कर्नाटक कार्यक्रम का उद्घाटन केपीसीसी कार्याध्यक्ष व भालकी विधायक ईश्वर खंड्रे ने किया। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य भीमराव पाटिल, जिला कांग्रेस महिला अध्यक्षा मीनाक्षी संग्राम, कर्नाटक रक्षणा वेदिका के राज्य अध्यक्ष नारायण गौड़ा, जिलाध्यक्ष सोमनाथ मुदल, डॉक्टर दिव्या ज्योति जालकन, डॉक्टर बसवलिंग औधरता, शंकरलिंग शिवाचार्य। इस अवसर पर आयोजककर्ता लक्ष्मण सुरलीकर ने बात की। हमारे संवाददाता असलम और कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। कर्नाटक रक्षणा वेदिके वतीयिंद कन्नड गडिनाडु उत्सव ಈ ದಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪಟ್ಟದೇವರು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು 132ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರು, ಅತಿ ಗಣ್ಯರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ವರೆಗೂ, ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ವರೆಗೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾದ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಜನರ ಸಮೂಹ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾವನೆಗಳಾಗಿರುವಂತ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಭಾವವನ್ನು ಸುತ್ತಾರೆ। ವಿಶ್ವಮಾನವ ಬಸವಣ್ಣವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಸಿಗಳಿದೆ, ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಿಕರಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ। ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು। ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಭಾಗದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಂತಿವರ್ಧಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಉರ್ದು ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 1956 ಭಾಷಾವಾರ ರಚನೆ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಇರುವಂತಲೇ ಇದೇ ಕಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಲೇಖನ ಕಂಡವರು ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಭಾಗದ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಬಸವತತ್ವ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಏನು 11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯಿತು ಅದು ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹ, ಸಹೋದರತ್ವ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅದರ ಕಳಗಳಿದೆ. ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಂದ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ. ಏನು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಕ್ಷರಶಃ ಆ ವಚನಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಹಂಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಂತವರು. अब देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर शहर में मौलाना आजाद स्कूल में 15 से 18 साल के बच्चों को टीका दिया गया। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अल्पसंख्यक विभाग जोर लगाकर अल्पसंख्यक विभाग के तहत आने वाले सभी स्कूल सहित अन्य संस्थाओं में जहां भी 15 से 18 साल के बच्चे हैं उन्हें टीका लगाने के लिए जोर दिया जा रहा है। जिलाधिकारी पी सुनील कुमार ने कहा कि जिला में कुल 173 केंद्र स्थापित किए गए हैं जहाँ टीका दिया जा रहा है। गवर्नमेंट हम्मिಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2007ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಾರದಂತೆ ಅವರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಂದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿನ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 9th 60 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಮತ್ತು SSLC 53, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 113 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೋರಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟರ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಲೆಟರ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು. ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 113 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ 113 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೇರಿ 113 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಗು ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ 18 ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ನವಾಜ್ ಅಂತ. ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ 2 ಡೋಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಮಗುವಿಂದು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿನ ನಾವು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಮಗು ತೊಗೊಂಡಾನೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಂತ। जैसा कि कर्नाटक ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि देखी, अकेले बेंगलुरु में 2000 से अधिक मामलों के साथ मंगलवार 4 जनवरी को राज्य सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात के कर्फ्यू के विस्तार के साथ राज्य भर में नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। साथ ही सप्ताहांत कर्फ्यू भी जारी किया गया है। नए प्रतिबंध 5 जनवरी से 19 जनवरी तक लागू रहेंगे। सप्ताहांत में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, लेकिन आवश्यक और आपातकालीन गतिविधियों की अनुमति होगी। कम सकारात्मकता दर वाले स्थानों पर कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने की योजना के साथ कर्नाटक सरकार अगले सप्ताह राज्य भर में प्रभावी रूप से घोषित रोकथाम उपायों की समीक्षा कर सकती है। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री JC मधुस्वामी ने कहा, गुरुवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक में कुछ मंत्रियों ने राज्य भर में प्रतिबंध लागू करने के बारे में आपत्ति व्यक्त की, खासकर उन जगहों पर जहां सकारात्मकता दर कम है। हमने 19 जनवरी तक पालन करने के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल जारी किया है। आज की कैबिनेट बैठक में कुछ मंत्रियों ने इसे राज्य भर में लागू करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया, खासकर उन जगहों पर जहां कम संक्रमण और कम सकारात्मकता दर है, उस पर सरकार विचार कर सकती है। ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री KS ईश्वरप्पा ने कहा कि ग्राम पंचायतों पर बिजली आपूर्ति कंपनियों का 4,229 करोड़ रुपए बकाया है। वह पंचायतों को आसानी से ऑनलाइन बकाया चुकाने में मदद करने के लिए ई-बेलाकू प्लेटफॉर्म लॉन्च करके एक समारोह में बोल रहे थे। मंच का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की खपत को सुव्यवस्थित करना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को बेस्कॉम के सहयोग से विकसित किया गया है। सरकार की ओर से समय पर धनराशि जारी करने के बावजूद ग्राम पंचायतों ने बकाया राशि को लंबित रखा है। अब तक ग्राम पंचायतों पर बेस्कॉम का 4,229 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि सरकार पहले ही ग्राम पंचायतों को बकाया चुकाने का निर्देश दे चुकी है।
उनमें से कई ऐसा करने में विफल रहे हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं अन्य समाचार। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की मूवमेंट के पूरे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया है कि वह पीएम नरेंद्र मोदी के ट्रैवल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखे। केस की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले को किसी पर भी छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह मामला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का है और NIA के अधिकारी इस केस की जांच में सहयोग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस, SPG और अन्य केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों को आदेश दिया है कि रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में जरूरी मदद मुहैया कराएं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने कहा है कि भाजपा का विरोध करने वालों के लिए तटीय राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक साथ आने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि GFP कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को एक व्यापक गठबंधन के हिस्से के रूप में हाथ मिलाना चाहिए ताकि सत्ताधारी भाजपा के अहंकार को तोड़ा जा सके। सरदेसाई की GFP पहले ही कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन की घोषणा कर चुकी है, जबकि MGP और TMC ने 40 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए अपना गठबंधन बनाया है। भारत में कोरोना के मामले फिर से लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में हर दिन काफी तेज रफ्तार में नए केस सामने आए हैं। देश में 27 दिसंबर को 6,780 नए मामले सामने आए थे, जो कि 6 जनवरी को 1.17 लाख तक पहुंच गए। कोरोना आंकड़ों के अध्ययन से समझ में आता है कि मौजूदा उछाल बड़े शहरों में हो रहा है। ये वैसे शहर हैं जहां लोग विदेश से आते हैं। आपको यह भी जानना जरूरी है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस विदेश से ही मिला था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर पलटवार करते हुए उन पर राजनीतिक रंगमंच का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कैपिटल दंगे की सालगिरह पर अपने दिए भाषण में उन पर हमला किया है। हालांकि बाइडेन ने अपने भाषण में ट्रंप का नाम उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह किसके बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक शख्स ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हार से बचने के लिए धोखा देने की कोशिश की थी। इसके बाद ट्रंप ने एक बयान में कहा, जो बाइडेन ने आज मेरे नाम का इस्तेमाल अमेरिका को और बांटने की कोशिश के लिए किया। ट्रंप ने कहा, यह राजनीतिक रंगमंच पर प्रदर्शित व्याकुलता इस तथ्य का प्रमाण है कि बाइडेन पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। देखते हैं समाचार फिल्मों के। बिपाशा बसु ने करण सिंह ग्रोवर के साथ सेलिब्रेट किया 43वां जन्मदिन। पति ने किया प्यार का इजहार। खेल जगत के समाचार। जॉनी बेयरस्टो की शतकीय पारी से संभली इंग्लिश टीम। पिछली 7 पारियों में इंग्लैंड के लिए पहला शतक। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पोस्ट ऑफिस से भी ले सकेंगे रेल टिकट। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। और रात में कर्नाटक रक्षणा वेदिके द्वारा डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवरू का 132वां जन्मदिवस मनाया गया। बीजापुर के मौलाना आजाद स्कूल में 15 से 18 साल के बच्चों को टीका दिया गया। कर्नाटक में 5 जनवरी से सप्ताहांत कर्फ्यू लागू होगा।
कर्नाटक में कम सकारात्मकता दर वाले स्थानों में कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार किया जा सकता है। दुनिया में हुई किरकिरी, पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार। भारत में अभी बड़े शहरों तक ही सीमित है कोरोना की तीसरी लहर, लेकिन छोटे जिलों में भी बढ़ रहे हैं मामले। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। महामारी से घबराने की जरूरत नहीं, एहतियात और टीकाकरण से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य ही जीवन है। धन्यवाद।